Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDF. So I have a very important announcement to make. So today we are going to start a new batch for GATE 2022 for civil engineering, and we are starting with RCC, reinforced cement concrete. Now in this subject, what actually we will be covering and when it will start. So it will be starting at every day from 9 p.m. onwards. Okay, this will be a premiere. All right, and the topics that will be covered will be discussed to you, and what you need to do is you need to take a pen and a copy and please make proper notes while studying so that it helps you in retaining everything. Now what else will be covered? We'll be covering topics, complete subject will be covered. Apart from that, we'll be taking interview questions as well, because you will be studying this RCC for the point of view of doing either MTech or PhD or for going for PSUs or engineering services anywhere. So interview are a must. So the number of questions related to interview will be taken care of. Apart from that, we'll also look at what are the projects that you can make if you are studying RCC. Okay, projects related to RCC. This will be useful for third year and final year students. Also, we are exploring some abroad opportunities. Like if you are from BTech student, then what are the abroad opportunities for doing internship? If you have done your BTech, then MS abroad. If you have done MTech, then PhD abroad. We'll look into that opportunities also. Plus your post-GATE counseling. Okay, post-GATE counseling, we'll look at that also. So this is not just conventional RCC for GATE we are studying. We are taking care of complete career. Okay, your complete career. So hold tight, make notes, do proper calculation, and I wish you all the best for your exam. Thank you. Hi everyone. So we are in this session जिसमें हम लोग RCC के बारे में पढ़ रहे थे. So till now we have completed analysis and design of singly reinforced rectangular section. Next हम लोग करने वाले हैं design and analysis of doubly reinforced section, rectangular section. Okay. तो heading डालते हैं. What is a doubly reinforced beam? पहले ये देख लेते हैं. Doubly reinforced beam. ठीक है. जब भी हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनता है, ओवर इन्फोर्स्ड का मतलब जितना रेइनफोर्समेंट चाहिए उससे ज़्यादा रेइनफोर्समेंट हमने डाल दिया है. ओके, तो उससे हम लोग कह रहे हैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन. अब होता क्या है, अगर सारा का सारा रेइनफोर्समेंट जबकि ओवर इन्फोर्स्ड है, जितना रेइनफोर्समेंट चाहिए उससे ज़्यादा रेइनफोर्समेंट है, और सारा का सारा हमने अगर बॉटम पे डाल दिया तो वो मोमेंट इम्बैलेंस कर देता है. ओके, तो उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना रेइनफोर्समेंट है उसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डबली रेइनफोर्स्ड बीम. ओके, दैट इज आर डबली रेइनफोर्स्ड बीम. देखो डबली रेइनफोर्स्ड बीम क्या होती है. हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये था हमारा ओवर रेइनफोर्स्ड सेक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ रेइनफोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा थे, रेइनफोर्समेंट ज़्यादा. इसको हम लोग चेंज कर देते हैं कुछ ऐसे. इस तरीके से दिस इज ओवर रेइनफोर्स्ड सेक्शन एंड दिस इज डबली रेइनफोर्स्ड सेक्शन. हो सकता है कि रेइनफोर्समेंट दोनों में सेम हो. ठीक है, इसमें 8 बार से, उसमें भी 8 बार से, रेइनफोर्समेंट सेम है, बट क्या अलग हो रहा है, इनका ओरिएंटेशन जो क्या कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस को एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, तो अब देखते हैं कि हम लोग डबली रेइनफोर्स्ड क्यों प्रोवाइड कराते हैं. ओके, तो देखो यहाँ फर्स्ट लिखना है, इफ साइज ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड. साइज में विड्थ प्लस डेप्थ, विड्थ प्लस, अगर साइज रेस्ट्रिक्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, डबली रेइनफोर्स्ड बीम पे जाते हैं. ओके, अब सेकंड पॉइंट लिखें, उसके पहले एक नोट लिखना है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओवर रेइनफोर्स्ड सेक्शन इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर रेइनफोर्स्ड सेक्शन. ठीक है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन. इसको यहाँ पे बस एक नोट करके ही लिख लो. अब इसके बाद लिखना है सेकंड पॉइंट. ओके, सेकंड पॉइंट, तो इसमें लिखेंगे व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन MOR बैलेंस.
ओके जब भी आपका बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन बैलेंस से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब हमें ओवर इन्फोर्स सेक्शन के तरीके से हो रहा है, बट हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको डबली रेनफोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी में आगे लिखना है, इफ बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन MOR बैलेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस, then we have two options. A, सबसे पहला, या तो आप प्रोवाइड कर दो एक ओवर इन्फोर्स सेक्शन, जो ऑब्वियसली है ही है कि आप ओवर इन्फोर्स सेक्शन प्रोवाइड करा दो, या बी, प्रोवाइड अ डबली रेनफोर्स सेक्शन, या फिर हम लोग एक डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये दो ऑप्शंस रहते हैं। अब ओवर इन्फोर्स सेक्शन अवॉइड किया जाता है ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रिटल फेलियर, ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स सेक्शन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, ये सारा प्लीज लिख लो, देन हम लोग आगे आते हैं। आगे लिखना है, इसी में सेकंड पॉइंट में ही लिखना है, ओवर reinforced section should be avoided, over reinforced section should be avoided since failure is brittle failure, therefore we provide doubly reinforced beam. Okay, now let's talk about permissible stresses, कि यहाँ पे हमारे permissible stresses क्या होते हैं। देखो, मान लो ये बीम है, ओके, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, रेनफोर्समेंट। हम लोग इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ओके, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, AS। सिग्मा ST बाय M होता है, तो इन कंप्रेशन स्टील हमारा जो स्ट्रेस होगा दैट इज 1.5 MC डैश, 1.5 MC डैश। इसको याद रखना है, सिग्मा C, ओके, स्टील में डिवाइड बाय M इक्वल टू कॉन्क्रीट में हमें स्ट्रेस देते। अगर मुझे स्टील में निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, M को सिग्मा C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 1.5 और ऐड कर देना है। C डैश हमारा क्या है, व्हाट इज C डैश, C डैश कॉन्क्रीट में स्ट्रेसेस है, ओके, इसको समझना है। ये जो C डैश है ये क्या है, कॉन्क्रीट में स्ट्रेसेस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्टील में स्ट्रेस निकालना है। तो स्टील में स्ट्रेस कितना आएगा, 1.5 MC डैश, C डैश जितना भी आ रहा है उसको 1.5 M से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखना है कि हम 1.5 वैल्यू क्यों ले रहे हैं, ओके, इस सबको लिख लो, देन हम लोग एक नोट लिखेंगे। नोट में लिखना है, यहीं पे करके लिख लो, 1.5 M वैल्यू, 1.5 M वैल्यू is taken to take care of creep, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 M की वैल्यू लेते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। लेट्स स्टार्ट विथ डबली रेनफोर्स्ड
बीम। अगेन देखो इसके अंदर स्टेप्स रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इतने बोर्ड पे आई विल एक्सप्लेन यू, ओके, और फिर हम लोग स्टेप्स भी करते जाएंगे। स्टेप सारा मैं उस साइड में लिखूंगा, इस साइड में सारा आई विल ट्राई कि मेरा फिगर आ जाए। तो देखते हैं कितना कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ओके, मान लेते हैं कि ये है हमारा क्रॉस सेक्शन बी, यहां से लेके यहां तक दिस इज डी डेप्थ, ओके, और यहां पे एक और आ गया, दिस इज ए एस सी, इसको बोल देते हैं डी डैश। कवर कितना है, डी डैश हमने बोल दिया कुछ कवर है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पे। लेट्स से दिस इज ए एस टी और ये है हमारे लिए ए एस सी। डब्ल्यू एस एम के जो असम्पशंस है ना, जो हमने पहले, वही यहाँ पर भी रहेंगे। चार जो असम्पशंस लिखे थे वही सारे असम्पशंस यहाँ पर भी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको बेसिकली दो पार्ट्स में कर देते हैं। हम लोग ये मानेंगे कि ये हमारा कंक्रीट बीम है, दिस इज बी, ये कोई डेप्थ है एक्स है, ओके, और यहाँ पे कुछ हमारा है ये, एंड दिस इज ए एस टी। क्या चीज़ समझ में आ रही है, ए एस सी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं डेप्थ निकालता हूँ, दिस विल बी डी माइनस एक्स है, ओके, डी माइनस एक्स है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को, ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड निकालना है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 विल बी टू फाइंड एक्स सी, बिल्कुल आराम से जैसा हम पहले करते थे वही चीज करनी है, एक्स सी, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स सी कैसे निकलता था, के डी यानी एम सिग्मा सी बी सी 1 सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। तो यहां से आपके पास में एक्स सी निकल के आ जाएगा, ओके। एनालिसिस पार्ट बहुत इजी है, इसके स्टेप्स फॉलो करते जाओ, एनालिसिस पार्ट हो जाएगा, ओके। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, दैट इज स्टेप 3, कंपेयर एक्स एंड एक्स सी, ओके, कंपेयर एक्स एंड एक्स सी। चलिए अब देखो, अब आता है यहां पे कुछ प्रॉब्लम। ये हम लोग बना देते हैं स्ट्रेस डायग्राम, ओके। मान लेते हैं ये है सिग्मा सी बी सी, सी डैश यहाँ पे सिग्मा एस टी बाय एम, ये एक्स ए है एंड दिस इज डी माइनस एक्स ए, करेक्ट। यहाँ पे हमारा लगेगा कुछ कंप्रेसिव फोर्स और यहाँ पे कुछ लगेगा हमारा टेंसाइल फोर्स। अब करते हैं स्टेप 3, देखना है आपको, कंपेयर एक्स एंड एक्स सी। जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं हम उसे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। एक केस ले लेते हैं, इफ एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, ओके, एक्स ए लेस देन एक्स सी होता था तो क्या बनता था, ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता था। अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, C इज लेस देन सिग्मा सी बी सी एंड T इक्वल टू सिग्मा एस टी, T इक्वल टू सिग्मा एस टी, ये हमारे लिए होता था, करेक्ट। अब मैं इतने सारी स्टेप्स हटा देता हूँ, आप लोग चाहो तो एक बार इनको सबको लिख लो, सो दैट मैं वहाँ पे रिमूव करके उधर पे एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज आई विल नीड दिस फिगर।
ठीक है, फाइंड एक्स। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर, को निकालना है कंप्रेशन साइड से। ओके, दिस इज फॉर बेसिकली योर एएससी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट से करेंगे, ऊपर वाले पार्ट से हमेशा देखना यहाँ पे, ऊपर वाले पार्ट से कैसे करेंगे। एक तो हम क्या ले लेते हैं, मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक सिग्मा सीबीसी और एक ये वाला सी डैश। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेवर आर्म। ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा हमें निकालना है कंप्रेशन साइड से। इस केस में यहाँ पे ये क्या है, सी है। ठीक है, दिस इज सी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज कैपिटल सी। इसको कैसे करके लिखें, दिस इज कैपिटल सी। ठीक है, बड़ा वाला सी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, फोर्स इज एवरेज स्ट्रेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, लिवर आर्म इज d माइनस एक्स बाय 3। ठीक है, आया समझ में। अब देखना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2। ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ये कितना आएगा, सी डैश। हमारा सी डैश क्या था, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। स्टील के लेवल पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस है, और हमें सारा का सारा फिगर चाहिए भी कंक्रीट में। तो यहाँ पे सी डैश हमारा स्ट्रेस हो गया। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, दैट इज m-1 इंटू ASC इंटू लिवर आर्म कितना हो जाएगा, अभी एक यहाँ पे लग रहा है, तो दिस इज d माइनस डी डैश, d माइनस डी डैश। आपको टेंशन साइड से नहीं जाना है, नहीं तो गलत आ जाएगा। ये समझ में आया। एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम पहले वाला तरीके से निकाल रहे हैं जो हम पहले निकालते थे, और ये वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम सेकंड वाला निकाल रहे हैं जस्ट फॉर ASC, जो नया पार्ट हमारे लिए आया है। ओके, जो नया पार्ट आया बस उसके लिए निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे C अपॉन एक्स ए, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST बाय m डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स ए। यहाँ से आपको C का वैल्यू मिल जाएगा। अब मुझे C डैश निकालना है, तो ये कर सकते हैं C डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी डैश, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST बाय m डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स। यहाँ से हमें C डैश मिल जाएगा। हमेशा आपको कंप्रेशन साइड से ही जाना है, टेंशन साइड से नहीं जाना है, बिकॉज आप टेंशन से जाओगे तो आप सिर्फ एक ही टर्म लिखोगे, सेकंड वाला टर्म ही नहीं लिखोगे। ओके, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो ये केस 1 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, वेरी इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहले वाला वैसे ही लिख रहे हैं जैसा हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए लिखते थे। सेकंड वाले में हमने सिर्फ ASC वाले टर्म को ऐड कर दिया है। दिस इज बिकॉज ऑफ ASC, एवरेज स्ट्रेस सी डैश है, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, ASC तो स्टील का है, कंक्रीट के टर्म्स में कितना होगा 1.5 m-1। ASC इंटू लिवर आर्म कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज d माइनस डी डैश। लिख लो इसको, फिर सेकंड आते हैं। अब सेकेंड केस हमारे लिए बनेगा इफ XA इज इक्वल टू XC। आपको वापस से लिखना पड़ेगा XA इक्वल टू XC, दिस इज बैलेंस सेक्शन। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, बैलेंस सेक्शन है। बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, T इक्वल टू सिग्मा ST होता है एंड C इक्वल टू सिग्मा CBC होता है। सिर्फ चेंज क्या आएगा,
इस वाले केस में स्लाइड क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा सीबीसी, एल्स परफेक्टली सारा का सारा सेम। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सिर्फ सी डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इसको निकालने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। सी डैश कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, अब सी डैश सिग्मा सीबीसी की टर्म्स में निकलेगा, क्योंकि वो नोन है। अभी तो यहाँ पे टी बाय एम हो जाएगा, हमें ये नहीं पता, इस वाले केस में टी बाय एम हो जाएगा। तो सी डैश निकालने हम लोग करेंगे एक्स ए माइनस डी डैश, दैट इज इक्वल टू एक्स। ओके, आप लोग चाहते तो सिग्मा एस टी की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, यस टी नहीं नथिंग डिफरेंट, कुछ भी टफ नहीं है। लास्टली हमारा आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन, इसको लिख लो एक बार प्लीज, ये सारी चीजें लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी, मेथडोलॉजी यही है, आपको कोई सा भी स्टेटमेंट याद नहीं करना है, याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। If XA is greater than XC, that is over reinforced section. So this is equal to T is less than sigma ST. तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जो चेंज आएगा दैट विल बिकम T बाय M। ओके, वो सिग्मा CBC रहेगा, यहाँ पे C डैश रहेगा। मोमेंट निकालने के तरीके वापस से यही है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 यही रहेगा क्योंकि हमें सिग्मा सीबीसी का वैल्यू पता है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 भी हमारा यही रहेगा, सिर्फ सी डैश निकालने का तरीका बदल जाएगा। ओके, सी डैश निकालने का भी तरीका यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीबीसी हम लोगों को पता है। सेम, बहुत आसान, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा। दिस इज ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ओके, ये हमारा एनालिसिस ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड बीम, बिल्कुल आसान। इसको लिख लो आगे, पूरा का पूरा कंप्लीटली लिख लो। टाइम चाहिए तो प्लीज टेल मी, मैं आपको मतलब इफ यू नो मोर टाइम तो वो भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए अब इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशंस दे रखे हैं, ये दे रखा है आपको कुछ 350 mm एंड this is given as 650 mm। ये जो कवर है this is given as 50 mm। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन दिया हुआ है
320 mm फायर, एरिया स्टील एंड कंप्रेशन दे रखा है 415 mm फायर. ओके, use M20 and Fe415. फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, ये क्वेश्चन है. M20 Fe415 सब कुछ दे रखा है, आपको निकालना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है. AST ASC दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको शुरू करते हैं. ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें, एक्स से एक्स से निकालना शुरू करें. आप लोग भी करते जाओ, मैं भी यहाँ पे करता जाऊँगा. सबसे पहले AST निकाल लेते हैं. AST कितना है? 942 mm². ओके, ASC कितना है? 706.5 mm². ठीक है, 706.5 mm². M20 Fe4 यानी का वैल्यू सिग्मा का वैल्यू 230. अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस. उसके अंदर हमने सिग्मा CBC सिग्मा ST को डिस्कस कर रखा है. LSM जब पढ़ेंगे सिर्फ सिग्मा CBC सिग्मा ST का वैल्यू स्लाइटली चेंज हो जाएगा. मेथोडोलॉजी पूरा का पूरा यही रहने वाला है. वेदर इट इज़ योर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम या डबली रिइंफोर्स्ड बीम, कुछ भी है, मेथोडोलॉजी पूरा यही रहेगा. इसलिए इसमें टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और साथ ही में हम लोग यहाँ पे M का वैल्यू भी निकाल लेते हैं. यहाँ पे एक काम करते हैं, एरिया को ऐसे ही रहने देते हैं 942. इसको हटा दो अभी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगी. ओके, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ M. 280/3 सिग्मा CBC. CBC को 7 रखेंगे, दैट इज 280 डिवाइड बाय 21. दिस विल गिव 13.33. सारी चीज़ें सेट है. अब हम लोग यहाँ पे x से x से निकालने की कोशिश करते हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फाइंड x से. कैसे निकलेगा? b इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाई 2 प्लस 1.5 m-1 ASC इंटू एक्स ए माइनस डी डैश दैट इज इक्वल टू m AST इंटू डी माइनस एक्स. स्टेटमेंट पूरा का पूरा यही है. डी है 650. यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं. ओके, दिस इज B. यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट क्या है? XA. ओके, दिस इज AST. और यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट क्या है? AST. और ये हमारे लिए हो गया ASC. एंड दिस इज लेट्स से D माइनस एक्स. करेक्ट, जो हमने पहले बनाया था. एंड नाउ दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम. यहाँ पे C डैश. अभी देखते हैं ऊपर सिग्मा CBC आएगा या क्या आएगा, तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा. वैल्यूज निकाल लेते हैं. B है हमारे पास में 350 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2, 1.5 इंटू 13.33 माइनस 1 इंटू AST इज 706.5 इंटू XA माइनस 50. that is equal to MS 13.33 into AST, this is 942 into D is 650 माइनस एक्स है. ठीक है, हालांकि देखो देखने में इक्वेशन बहुत डरावनी है ये, बिकॉज
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 991 में कैलसी में बहुत ही आसान सा तरीका है, पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख दो। ओके, यहाँ पे एक बटन है अल्फा करके। ओके, अल्फा से आपके पास यहाँ पे x निकल आएगा। जैसे आपको देखना है 350x² है बाय 2, हम लोग क्या करते हैं, ये जो अननोन है xa है, xa को हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं हमारे कैल्सी में। तो ये बटन है आपका, एक तो अल्फा दबाना है आपको, अल्फा। जैसे आप एक बार अल्फा प्रेस करोगे, अल्फा मैंने प्रेस किया, उसके बाद में ये वाला बटन ब्रैकेट वाला, तो ये हमारे लिए x ले आएगा। दिख रहा है आपको, x आ गया है हमारे पास में यहाँ पे। अब देखो आपको क्या करना है, कंप्लीट इक्वेशन को एज इट इज लिख दो इस कैल्सी में। ठीक है, देखना है 350 इंटू अल्फा x का होल स्क्वायर। ओके, x आ गया, दिख रहा है आपको, देखना है यहाँ पे 350 ओके x² डिवाइड बाय 2। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो। थ्री 350 इंटू अल्फा x² डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्या है, वो बॉड मास लगा देगा अपने आप पे, प्लस 1.5 इंटू 13.33 माइनस 1 इंटू 706.5 इंटू अल्फा x माइनस 50। मैं कंप्लीट इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूँ। फिर अब इक्वल टू लाने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ तक लिख दिया है x से माइनस 50, इस लेवल तक मैं लिख चुका हूँ। इक्वल टू लाने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा दबाया और उसके बाद में कैलकुलेट, अल्फा कैलकुलेट, तो हमारे पास एक इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 13.33 इंटू 942 इंटू 650 माइनस अल्फा x एज इट इज। पूरी की पूरी इक्वेशन को जो आपको दिख रही है पूरा का पूरा इसके अंदर लिख दो। फिर क्या करना है, 2 बार शिफ्ट कैलकुलेट, शिफ्ट कैलकुलेट, 2 बार दबाया, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। अभी धीरे धीरे आपको आंसर दे देगा, देखते हैं क्या आंसर आएगा। जो भी आएगा अभी दिख जाएगा, कैलकुलेट कर रहा है ये। एक से हमारे पास में आ रहा है 162.38 समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, 162.38, तो दिस विल गिव 162.38 mm। आया समझ में? इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। पूरा का पूरा आप इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बैठोगे। 162.38। सेकेंड आ जाते हैं, फाइंड xc। ओके, दिस xc इज इक्वल टू kd। k का वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं, k इज m सिग्मा cbc अपॉन सिग्मा st प्लस m सिग्मा cbc। ओके, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, d का वैल्यू हम लोग 650 रखेंगे, तो ये आएगा इंटू डी 650, ये हमारे पास में आएगा 187.59 mm। ओके, x से हमारे पास आ रहा है 162.38, x से हमारे पास में आ रहा है 187.59। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 162.38, यही आ रहा था ना, 162.38, और xc हमारे पास में आ रहा है 187.59 mm। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप 3 पे, दैट इज कंपेयर XA एंड XC। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि XA इज लेस देन XC, दिस मीन्स इट इज एन अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ओके, जब भी अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, T इक्वल टू सिग्मा ST है और C लेस देन सिग्मा CBC है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे एक तो आ जाएगा C और इधर पे सिग्मा ST बाय M। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, ये सारा भी रिमूव करते हैं, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR1 प्लस MOR2
दिस MOR2 इज बिकॉज ऑफ ASC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं MOR1 दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू लिवर आर्म. व्हाट इज द फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स, एवरेज स्ट्रेस इंटू B इंटू XA, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स, लिवर आर्म इज D माइनस XA/3. करेक्ट. अब मुझे C नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे C का वैल्यू निकाल लेता हूँ. कैसे आएगा? C अपॉन XA दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST/m डिवाइडेड बाय D माइनस XA. करेक्ट. C निकालना है. XA इज 162.38, सिग्मा ST 230 डिवाइडेड बाय 13.33 डिवाइडेड बाय 650 माइनस 162.38. अब यहाँ पे C हमारा 7 से कुछ कम आना चाहिए तभी करेक्ट होगा ये. फाइव पॉइंट 74. थोड़ा सा इसको करेक्ट, 7 थोड़ा सही से नहीं लिखा गया. ओके 5.74 ये हमारे लिए C आ गया. इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा. करेक्ट. तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 कितना आएगा? C प्लस 0/2 D माइनस XA/3. C is XA is 162.38, 650 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास समथिंग आएगा. आप लोग भी प्लीज सॉल्व करो, मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ. (97.193 किलो न्यूटन मीटर. ये हमारा आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1. करेक्ट. ये आया हमारे पास है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1. अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2. यहीं पर ही करते हैं, इसी जगह पे. दिस इज बिकॉज ऑफ ASC के कारण है. तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू C डैश इंटू एरिया इज 1.5 ASC. देखो अब लिवर आर्म कितना हो जाएगा? D माइनस D डैश. समझ में आ रहा है? हम लोग क्या लिख रहे हैं? फोर्स इंटू लिवर आर्म. दिस इज आर फोर्स. स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स इंटू लिवर आर्म कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस, ये लिवर आर्म D माइनस D डैश. तो पहले C डैश निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे? अपॉन XA माइनस 50. मैं ये वाला साइड ले रहा हूँ. C डैश अपॉन XA माइनस 50 दिस इज इक्वल टू, देखो इस तरीके से भी आप C डैश निकाल सकते हो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C अपॉन XA. सेम चीज है, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आएगा. अब इन दोनों को कंपेयर कर लो या इसको कंपेयर कर लो, दैट विल गिव द सेम रिजल्ट. तो मैं थोड़ा इजी होने के लिए C से कंपेयर कर रहा हूँ. C डैश अपॉन 162.38 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 5.74 अपॉन 162.38. तो यहाँ से हमें C डैश निकल आएगा. सिर्फ कैलकुलेशन है. (3.97) जो कि ऑब्वियसली आना भी चाहिए. दिख रहा है ना कि C से कम आना चाहिए C डैश, तो आ भी रहा है 3.97. अब बस यहाँ पे इसको रख देते हैं. दैट इज इक्वल टू C डैश इंटू वैल्यू रख देते हैं. C डैश आया 3.97, 1.5 इंटू 13.33 माइनस 1 इंटू व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ASC. ASC हमारे पास है 706.5 इंटू D इज 650 माइनस D डैश इज 50. ओके
तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2, दैट इज 31.98 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 97.138 है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 है 31.98, तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करना है हमें, प्लस 31.98, .17 किलो न्यूटन मीटर। थोड़ा सा देखो आपका आंसर वेरी कर सकता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है और कैल्सी का कैलिब्रेशन भी काउंट में आ जाता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि कैल्सी के कैलिब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो ये हमारा था एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स फ्रेम। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हमें न्यूमेरिकल ज़्यादा करने हैं LSM में, नॉट इन WSM। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वील स्टार्ट ऑफ विथ डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, हाउ डू वी डू द डिज़ाइनिंग पार्ट एंड ऑल दी अदर स्टफ, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।